Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. So in this particular session, we'll be continuing with the ethics section, ठीक है? तो today we'll be covering a new chapter altogether, ठीक है? हम लोग ये नया chapter start कर रहे हैं, that is probity in governance. तो इस chapter का एक बार आपको layout दे देता हूँ and then we'll come back to the concept. So this particular chapter, probity in governance, will be covered in 3 parts. तो सबसे पहले we look at what is the definition of probity. ठीक है, गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी में क्या रिलेशनशिप है उसको देखेंगे हम लोग. अब गवर्नेंस की बात करें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज, सर्विस डिलीवरी काम था, आपको याद हो. एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा था कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज. ठीक है, एंड ये फिलोसफिकल थिंकर्स ने क्या बोला है अबाउट गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी, इसको देखेंगे. तो ये सिलेबस में ये सब है. नेक्स्ट सेशन मतलब हम अगले दिन we'll be looking at how we can bring about probity. इस पे थोड़ा और देखेंगे. तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, कंडक्ट रूल्स हमने पढ़ा था इसको. इनफैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, हम ऑलरेडी इसको बार बार रेफर कर चुके हैं. ऑलरेडी आई हैव शोन यू ऑल्सो पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज में आपको दिखाया था. Moving forward, we'll look at the concept of citizens charters, information sharing, RTI, वो सारे aspects को हम cover करेंगे. And lastly, about the issue of corruption and misappropriation of the funds. ठीक है, तो ये सारे aspects को हम cover करेंगे in this particular chapter. अच्छा, अब आते हैं एक बार concept के ऊपर, basic concept of probity in governance. तो government, as I said, it performs certain tasks, that is governance. ठीक है, as public servants, what you want to do by joining IAS, आप कहते हो कि मेरे को ये काम करूँ कि I would want to do betterment of the society, I want to ensure कि corruption नहीं होती है, all those things. So that is associated with the governance over here. आप जब भी कभी भी interaction होता है आपका, that is your meeting, that is the government के साथ होता है, but that entire procedure is the governance, is an interface between the government and the citizen. राइट, तो ये हो गया आपका गवर्नेंस. अब प्रोबिटी क्या कह रहा है कि प्रोबिटी कह रहा है कि सही प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. बेसिक आइडिया ऑफ प्रोबिटी इज कि द सिस्टम इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस. उन सिस्टम के साथ गवर्नेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. So in other words, let me put it this way, जब आप ये expression पढ़ा होगा आपने probity in governance, definitely mind में आया होगा that we are looking at the issue of corruption. Corruption के साइड पे हम फोकस कर रहे होंगे. इनफैक्ट आपने जब ये टॉपिक्स भी देखे होंगे जो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए थे, so definitely there is an aspect of accountability and corruption. एक तो टॉपिक में यहाँ लिखा भी हुआ है. ठीक है, so probity. And yes, rightly so, it is associated with the corruption, but it goes beyond that also. ठीक है, वो corruption के beyond जाता है कि भाई एक होता है कि भाई corruption नहीं हो रही. ठीक है, आपने तरीके से काम, मतलब आपने जो रूल्स दिए थे आपने उसके अकॉर्डिंगली काम किया. बट एक ये भी तो हो सकता है कि प्रोसीजर्स को, यू नो, वन इज द लेटर ऑफ द लॉ, वन इज द लेटर ऑफ द spirit of the law, basically. Just got it wrong a bit. So spirit of the law, या उस basis, उस principles पे काम किया नहीं किया. ठीक है, doing something for the betterment, उस dimension से काम किया नहीं किया. We can always elaborate this. तो probity का जो मतलब हो गया, probity is much wider than the issue of corruption. Corruption बहुत narrow है, probity का थोड़ा और wide हो जाता है domain. It is a bit more than the issue of corruption, transparency, accountability. Okay, now probity उसका मतलब क्या है यहाँ पे. So probity, अगर governance में हमें probity चाहिए, हमें चाहिए कि सही तरीके से काम हो रहा है, सही procedures follow हो रहे हैं. If we want that, then we need to ensure at least we need to ensure कि procedures जो well defined है उसके accordance में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. That's the very basic thing. That's the very basic thing. जो well defined procedures है उसके accordance में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है. अगर वो नहीं हो रहा है, then there is a scope of corruption or malpractice taking place, right? So this is a risk management approach
एक अप्रोच है, रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। अगर हम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, मतलब हम इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, हम ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, हम फेयरनेस के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम कर रहे हैं, देन वी विल इंश्योर दैट प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं। प्रोसीजर्स अगर बाईपास किए जा रहे हैं, देयर इज एवरी स्कोप दैट ए मैल प्रैक्टिस इज टेकिंग प्लेस। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने केस स्टडीज देखी होंगी। केस स्टडीज मतलब आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, यू प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो आपने देखा होगा दैट लैंड, यू नो, जो लैंड है, गवर्नमेंट का लैंड है, वो illegally it is being getting transferred, या with the nexus of the government officials या politicians, it is getting transferred to certain industrialists। जो वो लैंड नहीं देना चाहिए था उसको ट्रांसफर कर दिया in such a way that it benefits the corporate। ठीक है, एक सबसे फेमस वाला जो सबसे आज भी फेमस है, दैट इज द केस ऑफ अशोक खेमका। ठीक है, इनफैक्ट आई विल बी रेफरिंग टू दिस अशोक खेमका, मैं उसको बार बार रेफर करूंगा। सो अशोक खेमका के केस में क्या हुआ था? सो दिस IAS ऑफिसर, ही वाज इन अ डिपार्टमेंट, ठीक है, जो लैंड का रेफरेंस में था, एंड उनको बोला देखो भाई, ये एक रूलिंग पार्टी है सेंटर में, मिनिस्टर, उनके ये रिश्तेदार है, इनको ये लैंड दे दीजिए, एक डील हो रखी है। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोसीजर्स के खिलाफ है, हम लोग रॉन्ग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। सो दिस वाज वन एग्जांपल। अगर ये प्रोसीजर बाईपास हो जाता तो गवर्नमेंट के एसेट्स, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज गलत तरीके से वहाँ चली जाती, राइट? तो प्रॉपर्टी की वजह से वी वर एबल टू अवर्ट अ रिस्क इन द सेंस गवर्नमेंट को लॉस होना था, यहाँ पे एक्सचेकर को लॉस होना था, पब्लिक रिसोर्सेज का लॉस होना था। सो दिस वाज बीन एबल टू चेक ओवर हियर। सो दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। तो प्रोसीजरल इंटीग्रिटी की, प्रोसीजर के यहाँ पे भी आप देखिए प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहा था, तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया। नेक्स्ट इज it is concerned, you know, it is concerned with the procedures rather than the outcome। ठीक है, आउटकम भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा आउटकम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे जब हम प्रोबिटी की बात करते हैं, इट इज हाउ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल कंडक्ट्स हिमसेल्फ। ठीक है, तो कोई भी आउटकम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं। तो ऑल वी आर सेइंग इज, जब हम कहते हैं प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कि वो प्रोसीजर्स ठीक तरह से यूज हो रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं। सो दैट इज द फोकस ओवर हियर कि प्रोबिटी, ठीक है, मीन्स आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर प्रोबिटी इन गवर्नेंस के केस में। नेचुरली अगर प्रोबिटी के साथ काम हो रहा है, डिलिजेंटली काम हो रहा है विद द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, देन इन दैट केस वी विल सी एन एथिकल बिहेवियर। ठीक है, तो करप्शन, ये जो मैल प्रैक्टिसेस होती है, वील बी एबल टू चेक दैट। सो इट इज अ साइन ऑफ एन एथिकल बिहेवियर, इट इज एन एविडेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर, एंड इट इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग इनकरप्टिबल। ठीक है, अगर सब अपने तरीके से इंटीग्रिटी के साथ काम, ऑनेस्टी एंड देन इंटीग्रिटी, I hope you know the meaning, right? So one is being honest, and integrity is to stand true to the values that a person has। ठीक है, तो इंटीग्रिटी के साथ होगा तो फिर ऑब्वियसली करप्शन होने की स्कोप कम हो जाती है। नाउ what measures can be taken to bring about an ethical behavior? ठीक है, तो एथिकल बिहेवियर या प्रोबिटी इन गवर्नेंस लाने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? नेचुरली आपने पढ़ा होगा अभी तक दैट वी हैव दिस कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, हमारे पास एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एंड देयर वाज अ प्रपोजल ऑफ पब्लिक सर्विसेज कोड। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स उसमें आना था। सो फर्स्ट थिंग इज इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे ऑलरेडी एन्यूमरेटेड है, तो हम इसको चेक करें। वी शुड ऑल्सो फॉर्मुलेट अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स। वैसे सेकेंड ARC इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशनल वैल्यूज एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, उसमें भी कुछ एथिकल वैल्यूज पे फोकस किया गया है, तो इन पे फोकस किया जाए। Beyond this, the focus has to be government servants hai, so they are in a position of authority, they are in a position of power, right? They may be implementing a particular scheme, they may be in the position of policing law and order. So in that case, there will definitely, जब एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वेलफेयर साइड वहाँ पे आ जाती है। So they need to focus, they need to instill the values of compassion, empathy,
दे नीड टू नो कि भाई दूसरे व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो एम्पैथी, लॉयल्टी, प्रोफेशनल वैल्यूज, इन पे फोकस देने की ज़रूरत है। एंड बियॉन्ड दिस, इफ थिंक अबाउट इट, इफ यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आप एक पब्लिक सर्वेंट है एंड आपके डिपार्टमेंट में अगर आप ही ठीक से काम नहीं कर रहे, यू आर एन IAS ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर इन योर डिपार्टमेंट, और अगर आप ही ठीक से काम नहीं कर रहे तो फिर लोग भी आपसे यही सीखेंगे और वैसे ही काम करेंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड बाय एग्जाम्पल। खुद एक ऑनेस्ट बिहेवियर दिखाइए, खुद इंटीग्रिटी के साथ काम कीजिए, और अगर आपके पास कोई केस आता है तो स्ट्रिक्ट मेजर्स लीजिए, क्योंकि आप जब स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हैं इट सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर द अदर पर्सन कि भाई ये व्यक्ति ऐसे गलत काम होने नहीं देगा, और ये सही के साथ ही साइड लेगा। तो जो ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता था वो भी फ्रीली आपके पास आएगा, अपना ऑब्जेक्शन रेज करेगा, ठीक है। एंड देन नेचुरली किसी ने करप्शन किया है, कोई गलत काम हुआ है, then implementation of laws should take place. So implementation of the Prevention of Corruption Act, fast tracking of those cases, so those things have to be focused upon. And lastly, actually ये सबसे पहले आना चाहिए था, कोई भी डिपार्टमेंट है, ये ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि करप्शन का केस आ रहा है, करप्शन का या रॉन्ग डूइंग्स का केस आ रहा है। So one very very good way of dealing with such a situation is fixing accountability. और आप अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करते हैं? आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं बाय ब्रिंगिंग इन ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो क्या है? जनता सवाल पूछ सकती है आपने कितने पैसे कहाँ लगाए। ये मतलब अभी जैसे मान लीजिए फ्रॉम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, तो कोई ये गार्डन का था, गवर्नर के हाउस या समबडीज गार्डन का था, तो उसका RTI डाल दिया, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने बताया भाई इतना खर्चा हुआ। कहते भाई वैसे तो इतना खर्चा नहीं होता, आपके कैसे इतनी चीज़ें महंगी महंगी आ रही है, राइट। सो ट्रांसपेरेंसी। या किसी डिपार्टमेंट की फाइलें फंसी रहती है, तो देयर इज अ रूमर इन दैट डिपार्टमेंट कि जब तक किसी ने बोला भाई अगर ये आपको काम अपना निकालना है, यू विल हैव टू गिव अ किकबैक, आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने काम कराने के लिए। पर अगर ट्रांसपेरेंसी होती, ई गवर्नेंस होता, तो सब ट्रैक पे रहता, एटलीस्ट इट वुड हैव बीन इन द पब्लिक डोमेन कि फाइल कहाँ है, किस ऑफिसर के पास है, एंड समबडी कैन अल्टीमेटली रेज एन ऑब्जेक्शन टू इट कि भाई इतना टाइम क्यों लगा रहा है, क्या कर रहा है। वन कैन गो टू द सुपीरियर एंड पिन पॉइंट इट, राइट। सो ट्रांसपेरेंसी के बाद पार्टिसिपेशन, public engagement, participation, public starts asking questions, and when that happens naturally there is accountability, ठीक है। तो TPA. Now this is RTI is one example of this thing. There are other things also, like ये आपका पब्लिक सर्विसेज बिल था, हमने देखा था। देन देयर वाज दी सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ, जिसकी अभी रिक्वेस्ट है, यू नो, सोशल अकाउंटेबिलिटी, दैट इज द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स द सोसाइटीज। सो देयर इज अ डिमांड रिसेंटली विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, ये न्यूज़ में रहे तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो द सिटीजन चार्टर, हम इसमें पढ़ेंगे। सिटीजन चार्टर क्या है? जो भी आपका डिपार्टमेंट होता है, तो वो डिपार्टमेंट की सिटीजन के स्पेसिफिक में क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज है, वो लिस्ट करते हैं। तो जब वो लिस्ट करते हैं, बताते हैं टाइमलाइन कि भाई यहाँ पे फाइल आई है तो इतना टाइम से इतना टाइम लगेगा, सारा को ट्रांसपेरेंटली बता रखा है। देन द सिटीजन कैन आस्क क्वेश्चंस कि भाई हमारी फाइल तो यहीं फंसी पड़ी है, आप काम तो हो नहीं रहा। सो व्हेन दैट हैपेंस, यू नो, अगर तो करप्शन की नौबत बहुत कम हो जाती है, करप्शन का स्कोप कम हो जाता है। तो एक्चुअली इसलिए मैंने बोला कि ये पहले स्टेप्स में होना चाहिए। ऑब्वियसली कोड ऑफ कंडक्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, रूटीन काम है, बट येस इट कुड हैव बीन अप हायर। लॉजिकली देखा जाए तो करप्शन का केस आना ही क्यों चाहिए, नहीं? ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज मेंस 2019, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी आगे आ चुका है। सो you should be able to answer this. Have a look at the question. What do you understand by probity in governance? आप क्या समझते हैं with probity in governance? Based on your understanding of the term, suggest measures for ensuring probity in government. ठीक है, गवर्नमेंट गवर्नेंस कैसे आप इसको ला सकते हैं। तो आपको पता है कि probity क्या है? A person working, basically working with the bringing an attitude of
ethical attitude of honesty, integrity in governance, fairness in governance, which is basically आप थोड़ा सा बता सकते हैं, it is a risk management approach, it is concerned with the procedures than the means or than the outcomes. ये सारा आप बता के फिर आप बता सकते हैं कौन सी क्या क्या measures लिए जा सकते हैं. In fact, think about it. Yourself, imagine yourself, put yourself in the seat of an IAS officer. आप सोचिए कि आप किसी डिपार्टमेंट में होते तो आप क्या मेजर्स लेते. ये अप्रोच आपको हेल्प करेगा. लेट्स से देयर इज अ केस स्टडी ऑफ करप्शन ऑल्सो. ठीक है, तो केस स्टडी भी अगर आपके पास आ जाती है, जस्ट विजुअलाइज योर सेल्फ दैट देयर इज अ प्रॉब्लम वेयर देयर इज अ करप्शन टेकिंग प्लेस. इमेजिन यू आर अशोक खेमका, आपके ऊपर प्रेशर आ रखा है. ठीक, आप क्या करते हो सिचुएशन के अंदर, क्या क्या प्रोस होते हैं, कॉन्स होते हैं, आप सारा वहाँ पे विजुअलाइज कीजिए. ओके, तो ये आपका 150 वर्ड्स. ठीक है, आपको मेंस 2019 में आया, तो वेरी रिसेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट आता है व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी डिसीजंस शुड बी. क्या क्या डिसीजंस होने चाहिए, कैसे प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ये अब जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना एक्चुअली, तो प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सही तरीके से चल रही है, प्रोसीजर ठीक तरह से फॉलो हो रही है. पर कभी कभी ये जो चीज़ें हैं, प्रोसीजर्स है, कभी कभी दे आर अ बिट स्टिफलिंग, ठीक से काम नहीं करने देते. बात बात पे प्रॉब्लम, ऐसे कर दिया तो CAG आ जाएगा, ऐसे कर दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा. रिमेंबर जब हमने पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू करा था, सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द होटा कमिटी रिपोर्ट, ठीक है, जिसकी बोरोइंग्स जिससे सेकेंड ARC ने लिया था, उन्होंने कहा था वी वांट टू क्रिएट अ क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योर्स. तो ठीक है, ये सब होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए दैट इट स्टिफल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. रादर इट शुड बी अलाउइंग द सिविल सर्वेंट टू बी मोर एंटरप्रेन्योर लाइक, बीइंग मोर इनोवेटिव. ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए. ये नहीं कि डर में काम करे यहाँ पे कि प्रोसीजर में लिखा है मैं तो ऐसे ही करूँगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाऊँगा. तो वही हो गया ना कि जैसा लॉ में लिखा है वैसा ही कर रहा है, रादर दैन ट्राइंग टू फोकस ऑन द स्पिरिट ऑफ द लॉ. तो ये कभी कभार बैकफायर भी कर जाता है. कभी कभी बहुत इरैशनल भी हो जाते हैं मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, प्रॉपर्टी लाने के लिए. तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे, कुछ पैरामीटर्स जो फॉलो होने चाहिए. इन जनरल तो बेसिक वैल्यूज तो सेम ही है, फाउंडेशनल वैल्यूज एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज, वो तो बेसिक है, कॉमन चीज़ें हैं. बट बियॉन्ड दिस क्या हो सकता था? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोबिटी के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं दैट शुड बी हेल्पफुल. वो असिस्ट करने चाहिए द पर्सन इन गवर्नेंस. ये नहीं कि इट वर्क्स, इट स्टिफल्स. वो ऑब्जेक्शन करते हैं, रोकते हैं लोगों को फ्रॉम काम करने से अपना. ठीक है, उनको डर लगता है कि अगर किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो इट शुड बी रादर, इट शुड फैसिलिटेट गवर्नेंस, फैसिलिटेट गुड गवर्नेंस. नेक्स्ट इज इंक्लूसिव. It should be inclusive enough that it facilitates different viewpoints, different thoughts. अगर उसको लगता है कि मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति इनोवेशन लेके आता है तो उसको अलाउ किया जाना चाहिए. ये नहीं कि भाई ये प्रोसीजर था, आपको ऐसे ही काम करना था. यही है ना इसका, आपका प्रोबिटी का यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं तो क्या कह रहा है प्रोबिटी के डेफिनेशन में? It is concerned with the procedures and processes and systems. तो अगर कोई कहता है कि ये प्रोसीजर नहीं ठीक लग रहा है, विद बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, उसको लगता है कि ये ठीक नहीं लग रहा है, देन इन दैट केस ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई प्रोसीजर के हिसाब से काम करो. उसको लगता है कि नहीं, ये ऐसे करते तो शायद बेटर रहता. होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इट. सो इट शुड बी इंक्लूसिव टू न्यू आइडियाज. बट देन अगेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब प्रॉपर्टी इन द सेंस कि करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, एथिकल तरीके से काम होना चाहिए. एज फार एज दैट प्रिंसिपल इज डन, देन इट शुड बी फाइन. इट शुड बी वेल टेलर्ड. टेलर्ड का क्या मतलब होता है? आपके कपड़े होते हैं, दे शुड बी वेल टेलर्ड, आपकी फिटमेंट के हिसाब से होना चाहिए. ये नहीं कि वन साइज फिट्स ऑल, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक जैसी पॉलिसी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो इट शुड बी टेलर्ड, इट शुड बी सुटेबल फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. फॉर इंस्टेंस, लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल. मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है. इट वुड वांट द प्रोसीजर शुड बी अ बिट रिलैक्स्ड.
ठीक है, प्रोसीजर्स रिलैक्स हो जाए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, मतलब कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर हाँ गवर्नमेंट की स्कीम भी इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके लिए भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए, कि ये नहीं कि भाई वो अपना काम ही ना कर पाए। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, उसके लिए अलग सिस्टम्स, अलग प्रोसीजर्स होने चाहिए वहाँ पे। सो इट शुड बी वेल टेलर्ड टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसमें वो काम करना है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। एंड अबव ऑल इट शुड नॉट बी इरैशनल। ये नहीं, ये सारे अगर चीज़ें हम यहाँ देखते हैं कि वो बोलते हैं प्रोसीजर के हिसाब से ही काम करना है, पता है गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, कोई एक्शन लेने से गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव एक्शन, बट प्रॉपर्टी पे सवाल आ जाएगा। कहते हैं कि 4 C's हमें अटैक कर देंगे, 4 C's 3 C's, कौन से C's? CBI, CVC, CAG, कोर्ट्स, ठीक है, 4C हो गए, कभी कभी 3C कह देते हैं माइनस द कोर्ट्स। तो कहते हैं ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट शुड बी सेंसिबल, इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अगर थोड़ा सा है तो फिर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, बट एज लॉन्ग एज द इंटेंशंस आर करेक्ट। तो ये कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जो इस पे ध्यान देने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग द प्रोबेटी। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज रेफरिंग कि एक सिविल सर्विसेज 19 में आया है, फिर 2014 के अंदर आया है, ठीक है। तो 2014 का क्वेश्चन है, जस्ट हैव अ लुक। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेटी इन पब्लिक लाइफ? ठीक है, आपका वो थोड़ा स्पेल चेक हो गया। अंडरस्टैंड बाय प्रोबेटी इन पब्लिक लाइफ, What are the difficulties in practicing it in the present times? क्या क्या difficulties है, ये पार्ट नया है। How can these difficulties be overcome? ठीक है, तो ये भी हम देख चुके हैं इसको, पर पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो आपको पता है, What do you understand by probity in public life? अच्छा, एक चीज फर्क है क्वेश्चन के अंदर, तो पब्लिक लाइफ लिखा है, प्रोबेटी इन गवर्नेंस एंड पब्लिक लाइफ में थोड़ा फर्क है यहाँ पे। पब्लिक लाइफ मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट वाला तो हो गया, ठीक है, तो गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज, वो सब तो हो गया यहाँ पे, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एनजीओज, द सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो आपने वो स्टेट की डेफिनेशन देखी होगी इन योर कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा देयर आर वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस, वेरियस अदर थिंग्स जो पब्लिक के साथ एसोसिएटेड है, जो स्टेट के कंपोनेंट है। सो इट मे गो बियॉन्ड दी गवर्नेंस साइड एज वेल, ठीक है, तो गवर्नमेंट के बियॉन्ड जाता है, सो इट इज मच अ बिट मोर देन दैट। ओके, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इट इन रियल टाइम्स? ये प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्या आती है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद दिस अशोक खेमका डायलेमा ओनली, ठीक है। तो ये आपके अशोक खेमका है। सो मिस्टर खेमका, he had a problem, उनको एक प्रॉब्लम थी अबाउट दिस लैंड एक्विजिशन का, ठीक है, तो उन्होंने मिस्टर खेम का एक IAS ऑफिसर, और उन्होंने लैंड एक्विजिशन वाला प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, तो गवर्नमेंट ऊपर से उनको प्रेशर था, सीनियर गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट सीनियर जो है इनके, उनसे प्रेशर था दैट दे रिलेंट एंड प्रोसीजर थोड़े रिलैक्स कर दे, ठीक है, अपने मॉरल्स को भी थोड़ा रिलैक्स कर दे, सो दैट land can be given incorrectly to an political family, ठीक है, तो वहाँ पे इनको ज़मीन दे दी जाए। ये यहाँ पे बात थी, इनके मॉरल्स वहाँ पे आ गए, प्रोबेटी आ गई, तो they were not able to do. So in this reference आप देखिए कि what are the difficulties faced by this person in practicing probity। तो प्रेजेंट टाइम ही है, ज़्यादा टाइम तो होगा नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखिए मिस्टर खेमका हो या फिर, तो अभी रिसेंटली आया था दैट इन 29 years he has had about 50+ postings, 54, 55, ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली सोचते हैं यार एक सर्विस होगी, एक पोस्टिंग होगी तो आपको 2 साल का टेन्योर मिलेगा, तो अबाउट 54, 55 इनकी पोस्टिंग्स हो चुकी है। तो ये हैरेसमेंट है और कुछ नहीं। घर जाओ, शिफ्ट करो, हस्बैंड कहीं, वाइफ कहीं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है इससे, ठीक है। सो वन वी हैव दिस अशोक खेमका, देयर वाज अनदर पर्सन संजीव चतुर्वेदी, सो ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा, ये भी हरियाणा के थे, तो वो फॉरेस्ट सर्विस के थे, एंड ही फाउंड सर्टन प्रॉब्लम्स इन फॉरेस्ट सर्विसेज के थे कि फॉरेस्ट में ये इलीगल ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो मास्टर्स थे उन्होंने ये करप्शन के लिए उन्होंने जो पिन पॉइंट किया था, पहले सालों में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, बाद में उनके 0 मार्क्स दे दिए,
दिस इज क्वाइट इरेशनल, प्रेसिडेंट से भी ऑब्जेक्शन आया था. इन एनी केस, सो ही वॉज अल्टीमेटली रिमूव्ड. ठीक है, दिल्ली में दिस एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्टेड, अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी केम, आम आदमी पार्टी. तो उन्होंने वहाँ पे उनको रख लिया. तो ये आपका एम्स में थे. ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज द रूलिंग पार्टी, सेंटर में जो पार्टी थी, नॉट दिल्ली पार्टी. तो एम्स में रख लिया. एम्स में गए तो उन्होंने वहाँ पे भी ऑब्जेक्शंस रखने शुरू कर दिए कि भाई करप्शन हो रही है. वहाँ से भी उनको हटा दिया. नाउ ही सिटिंग विदाउट डिपार्टमेंट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. So what are the difficulties that these individuals would be having? Difficulties. First of all, harassment. The department he is working in, there is corruption. ठीक है, वो corruption है यहाँ पे. Maybe he is honest over there, पर उनको support नहीं मिल रहा है. उनके जो colleagues है वहाँ से उनको इतना support नहीं मिल रहा है. ठीक है, there is criminalization of the politics. So the government, the higher ups, so they are a bit soft towards the corruption. एक logical सी बात है, जिनका खुद का corruption record है, उनका they will be more lax towards the issue of corruption. They'll be more tolerant over here, right? So एक पूरा ecosystem है which makes it very very difficult for a particular person to implement probity in real life. Now he must be a person with a strong integrity, strong character, Sanjeev Chaturvedi, Ashok Khemka. But not everybody is able to stand up to that political pressure. Not just political pressure, societal pressure. It may be pressure from the family. Family कह रही है भाई तुम इतना कमा रहे हो, तुम्हारा साथ वाला जो दोस्त था IIT से पास आउट हुआ था, वो तो इतने लाख कमा रहा है, वो अपनी बेटी की कितनी अच्छी शादी कर रहा है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है. That can also be a case. So within the family also there is a problem. So काफ़ी सारे scenarios develop हो सकते हैं. So try to imagine that. So some theoretical, ठीक है, so difficulties in present times, क्या क्या issues हैं. तो सबसे पहले ये जो civil servants है, ठीक है, there is a mindset, वो जो colonial mindset था कि we are the ruling class and we are entitled. ठीक है, हम entitled है to these privileges, benefits, and बाकी लोग हमारे subjects हैं. So the idea is not of delivering public service, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस या कंपैशन टुवर्ड्स वीकर, वो तो है ही नहीं. रादर इसकी हम लोग इंटाइटल्ड है, हमने ये एग्जाम, हमने हार्ड वर्क किया है, हम उसके बेसिस पे है, एंड वी आर प्रिविलेज्ड. सो देयर इज अ कॉलोनियल लेगेसी, दैट माइंडसेट इज देयर. देयर इज रैम्पेंट करप्शन. ठीक है, देयर इज रैम्पेंट करप्शन. ये करप्शन हो रही है तो ईदर वेज, या तो वो व्यक्ति स्टैंड लेना नहीं चाहता या वो खुद करप्ट है. उसका जो इकोसिस्टम है, अगर वो जाता है कि भाई, कभी कभी ऐसे भी होता है पर्सन इज ऑनेस्ट बट वो इतना प्रेशर है कि वो रिलेंट कर जाता है, उनकी वैल्यूज मे नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग, राइट? सो इट मे बी करप्शन इन द इकोसिस्टम, करप्शन फ्रॉम द टॉप, करप्शन इन द सोसाइटी, करप्शन फ्रॉम द मार्केट. वो बिजनेस डिपार्टमेंट से है एंड ही इज हैविंग पब्लिक डीलिंग्स, उन पे पैसे दिए जा रहे हैं उनको कि आप रूल्स रिलैक्स कर दो, कुछ भी हो सकता है. सो देयर इज रैम्पेंट करप्शन एंड येस देयर इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, तो इंडिया को कहते भी है दैट इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट. ठीक है, तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस विद द क्रिमिनल records, so naturally they are going to be soft towards corruption, stop towards corruption, as well as if you can look further, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी का भी सिस्टम है, पॉलिटिकल फंडिंग्स, वो कहाँ से वो आती है? इट्स डिपेंडेंट ऑन क्रॉनिक कैपिटलिज्म. प्राइवेट कंपनीज उनको पैसे देती है, मतलब फंडिंग करती है उनकी. कहते हैं 95% ऑफ द फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज इज कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर. तो अल्टीमेटली दे हैव टू प्लीज देम वंस दे गेट इनटू पावर, क्योंकि फंडिंग दी थी इन्होंने, दे हैव टू प्लीज देम एंड बेनिफिट देम, तो वो भी होता है. एंड समटाइम्स लोगों को इनकरेक्ट डिसीजंस लेनी पड़ती है, इवन दो दे फील की रॉन्ग एक्शंस हैं, पर उनको लेनी पड़ती है बिकॉज फियरिंग द सोशल बैकलैश. ठीक है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ दिस. सो एक आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से अभी एक रिसेंटली एक वेब सीरीज होनी थी, शूटिंग हो रही थी. ठीक है, तो सर्टन सेक्शन हैड अ प्रॉब्लम, सर्टन सेक्शन हैड एन ऑब्जेक्शन टू इट. तो उनको लग रहा है आईएएस, वैसे उसको ऑफिसर को पता है कि भाई ये तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वहाँ पे. ठीक है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट उनको पता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया, एक्शन नहीं लिया वहाँ पे, देन इन दैट केस जो सोसाइटी है देयर विल बी बैकलैश ऑन दैट. ऐसा हो सकता है.
देयर वाज अ वेरी फेमस केस स्टडी, वहाँ पे था कि देयर इज दिस पर्सन, ठीक है, आप पोस्टेड है वहाँ पे एज एन IAS ऑफिसर, वट एवर यू आर पोस्टेड ओवर देयर, एंड वहाँ पे योर जॉब इज की इम्प्लीमेंटेशन जो आपका मिड डे मील स्कीम होती है, एंड उसके अंदर द पर्सन कुकिंग द फूड वॉज फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। तो जो खाना बना रही है, अगर हमारा जो सोशल कस्टम्स है वो कास्ट अनटचेबिलिटी के ऊपर है और यहाँ पे खाना ही बना रही है, सो पीपल हैड एन ऑब्जेक्शन कि अगर ये खाना बनाएंगे तो हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालेंगे। सो इन दैट केस जो स्कूल की परफॉर्मेंस है या फिर वो जो द कॉन्सेप्ट है ना कि एजुकेशन से बाहर जा रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, वो प्रेशर है सिविल सर्वेंट के ऊपर। सो बिकॉज ऑफ द सोशल बैकलैश द पर्सन में रिलेंट। तो ये कुछ सिनेरियोज है यहाँ पे। नाउ हाउ डू वी डील विद सच प्रॉब्लम्स? व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम दस डिफिकल्टीज? तो सबसे पहले तो वही कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले आप बताइए कि भाई क्या हमारे प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या कंडक्ट का तरीका होगा। ये तो नहीं रोका, हाँ ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स गवर्नमेंट ने नहीं भेजे, सेंटर ने, आप तो बना सकते थे अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं। सो फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर योर डिपार्टमेंट। ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी कर दीजिए। अगर ये जो सारे करप्शन होती है, बिकॉज देयर इज सीक्रेसी, तो दैट अलाउज फॉर wrong things to take place. So if there is transparency, so naturally there will be participation and accountability, answerability बढ़ती है यहाँ पे, ठीक है। There can be a citizen charter at workplace. Institutional safeguards can be utilized. तो आपके पास ये CBI है, CVC, CAG, those can be used. That fear कि भाई हम गलत काम करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन होगा, so that can be done. And quick trial of corruption cases. And beyond this, obviously leading by examples, वो सारे points आप यहाँ पे बता सकते थे। Now moving forward to the next concept, that is the concept of public services. So as said earlier, governance का काम है, one of the tasks of governance is public service delivery, ठीक है। And government does provide certain services. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स, वो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट हो जाए या राइट टू एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, स्कूल्स, एंड समथिंग एज बेसिक एज पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। सो बेसिक थिंग्स दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन्स इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, वो सबको मिलनी ही मिलनी है, बेसिक चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, इट इज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट. It is associated with the government and offered by the administrative bodies. And इस reference में it is also important to talk about the fundamental human rights. एक होता है fundamental rights, एक होता है natural rights, एक होता है human rights. ठीक है, तीनों थोड़े थोड़े अलग अलग है। Natural rights है जब a person is expected, वो भी इनको provide करना है। A person is the very basis that he is born. A person, he or she is born, they have like to speak, to move, basic चीज़ें हैं जो एक natural right मानी जाती है। Human right includes natural rights, but it may also include something like right to have a house, ठीक है। So as the human society develops, तो इसके definitions और improve होते रहते हैं। Right to education हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं which goes a bit beyond the natural rights. अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड कर रखा है, उसमें कुछ आपके नेचुरल राइट्स है, कुछ आपके ह्यूमन राइट्स है। ओके, नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द क्वेश्चन ओवर हियर। ये आप क्वेश्चन देखिए इसको। सो एथिक्स फॉर मेनी, ये क्वेश्चन अच्छा है। एथिक्स फॉर मेनी इन द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड अ रोड ब्लॉक और मोर ओवर एन अननेसेसरी इविल। यू नो, आप तो पढ़ सकते हैं इसको। तो बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है कि कभी आपने कितनी बार देखा होगा कि कहते हैं कि यार ये प्रोटोकॉल्स है, ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, ये द फेयर ऑफ द 4 C's, ठीक है, CBI, CVC, CAG, इन सब की वजह से हम लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो एथिक्स, तो उसकी वजह से, ठीक है, ये प्रैक्टिकल अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, पर एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है। ये आपका इशू ऑफ द लैंड एक्विजिशन का भी एक केस देख लीजिए। आप लैंड एक्विजिशन करना है या फिर आपको स्लम ड्वेलर्स को निकालना है, अब कोई अपनी मर्जी से तो जा नहीं रहे यहाँ से,
तो बाय फोर्स ही इफेक्ट किए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ डन बाय फोर्स, ठीक है। सो इट इज़ नॉट डन बाय कंसेंसस, तभी ये सारे प्रोटेस्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। तो वो डेफिनेटली दैट एक्शन इज़ नॉट एथिकल, इवन इफ दे वर लिविंग ऑन द गवर्नमेंट लैंड, फिर भी हम कहते हैं कि वो एक्शन अनएथिकल है। ब्रॉडली देयर इज अ कंसेंसस ऑन दिस। तो कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, रूटीन अफेयर्स में ये प्रैक्टिकल नहीं है। इवन इनफैक्ट इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड ऑल्सो, ये थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, कल को वो भी कह दो कि वो पोल्यूशन होती है, तो वो एथिकल नहीं है, बट ऑब्वियसली वो करनी पड़ती है। ओके, सो दो इट इज़ अ लॉडेबल येट इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। इन योर ओपिनियन आपको क्या लगता है इस बारे में, ठीक है, ये सही है या गलत है ये स्टेटमेंट आपका, और आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम और ले सकते थे, लैंड एक्विजिशन हो गया, एक और एक केस लेते हैं। व्हाट अबाउट ये जो पुलिस जो 3rd डिग्री टॉर्चर लगाती है टू गेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो टॉर्चर होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर हो गया, पनिशमेंट कुछ भी होती है टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट, अब वो भी अनएथिकल है यहाँ पे। तो थोड़ा सा बात में दम तो है यहाँ पे, बट बाय एंड लार्ज ये थोड़ा सा एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, एक जस्टिफिकेशन है, एंड समथिंग व्हेन यू इफ़ यू आर राइटिंग, और ये आ गया, ये कोई पास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं है, बट इफ़ यू आर राइटिंग ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है, यू हैव टू से दैट एथिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एथिक्स एंड द वैल्यूज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द वैल्यूज डिराइव फ्रॉम सर्टेन लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द लैंड एक्विजिशन इशू। तो लैंड एक्विजिशन के भी इशू में इट्स अ वेरी रीजनेबल थिंग। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कंसेंसस बिल्ड करे, लोगों के साथ नेगोशिएट करे, या जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, लैंड लेना चाहता है, तो वो राइटफुली उसको नेगोशिएट करे, ब्रिंग अबाउट अ कंसेंसस एंड देन डू इट। सो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? और उसमें भी ये नहीं है कि 100% एग्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो कभी कभी 70%, 70-80% है, आपको उतना होगा तो अ पर्सन कैन एक्वायर द लैंड। पुलिस की केस में कहते हैं जो 3rd डिग्री टॉर्चर रहते, कहते नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, फोकस ऑन बेटर इन्वेस्टिगेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग फोकस कीजिए वहाँ पे, सो दैट अप्रोच नीड्स टू बी डन, राइट। सो द फोकस ऑन बिल्डिंग कंसेंसस, बिल्डिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर फोकस किया जाना चाहिए। सो दोज थिंग्स हैव टू बी डन, ठीक है। तो ये एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है। So in fact, one more example, although not directly linked over here, ये आपका continuous and comprehensive evaluation का एक स्कीम आया था, जो आपका एग्ज़ाम होते हैं, बार बार आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि एग्ज़ाम्स का सिस्टम बंद कर दो और सिर्फ टेस्ट होने चाहिए, बेसिक एवेल्यूएशन होनी चाहिए। अब वहाँ पे भी द टीचर्स, इवन दो दैट वाज अ लेट्स से laudable effort, laudable scheme, but the focus was not done on teachers' capacity building to be able to evaluate continuously and comprehensively. So the focus should be on those aspects, ठीक है। So somewhere it is more of an escapist attitude, justifying कि भाई हम नहीं, ये प्रैक्टिकली नहीं है, हम नहीं कर सकते, पर देर आर तरीके हैं, बाकी कंट्रीज में होता ही है, ऐसे थोड़ी कि हर जगह बाय फोर्स ऑफ डंडे के फोर्स पे ही काम हो रहा है या अनएथिकल तरीके से काम हो रहा है। So that can be done. Now moving on to the next aspect, that is the philosophical basis of governance. अब यहाँ तक हमारा प्रोबेटी का पार्ट खत्म है, ठीक है। ये एक अलग लाइन है ऑल टुगेदर, बाद में फिर से आएंगे। तो ये एक अलग लाइन है और इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी रखा है इन सिविल सर्विसेज मेंस पेपर। नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, एंड ये आपका जो फिलोसफिकल बेसिस है, पर्टिकुलरली वी आर रेफरिंग टू दीज थिंकर्स ओवर हियर, ठीक है। सो दे वर पार्ट ऑफ द एज ऑफ इनलाइटनमेंट, ठीक है, ये आप यहाँ पे आगे बाद में टेक्स्ट देख लीजिएगा। They were part of the age of enlightenment. When यूरोप के अंदर there was this movement, एक movement चल रही थी where the people were asking critical questions. अलग अलग fields में, be it science, be it politics, हर एक field में दे रहे थे, तो politics में भी हो रहे थे, and people wanted to address the issue of relationship between the state, उस टाइम पे monarchies थी, and the people, citizens जो वो स्टेट के पार्ट है, गवर्न हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस रेफरेंस में देयर कम्स द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहती है? वो कहती है कि
एक स्टेट है और वो स्टेट कैसे आया, अपने आप तो आया नहीं। तो वो कहते हैं कि बाय अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट द पीपल गेव इट्स सर्टेन पावर्स टू द स्टेट। तो उन्होंने अपने कुछ पावर्स यहाँ पे उनको दे दी, ठीक है। सो दिस वाज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत द स्टेट वाज ऑब्लिगेटेड टुवर्ड्स द पीपल। और वो क्या ऑब्लिगेशंस है, देयर शुड बी गुड गवर्नेंस, देयर शुड बी वेलनेस ऑफ द पीपल, ठीक है, देयर शुड बी लॉ एंड ऑर्डर, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो ये ऑब्लिगेशंस थी स्टेट की विद रेफरेंस टू द पीपल। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, दिस वाज अ पीरियड ऑफ, उसके आगे चल के रेवोल्यूशन का पीरियड आ गया यहाँ पे, ठीक है। थॉमस हॉब्स के टाइम पे, ये हमारे फर्स्ट थिंकर है, तो थॉमस हॉब्स के टाइम पे देयर वाज दिस इंग्लिश सिविल वॉर, सो देयर वाज एन मूवमेंट अगेंस्ट द मोनार्की। सो द क्वेश्चन वाज व्हेन कैन, कब लोग स्टेट को उखाड़ बहार कर सकते हैं, राजा को उखाड़ बहार कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कब हो सकता है। सो दिस इज व्हाट दीज थिंकर्स ओवर हियर ट्राई टू एड्रेस, ठीक है। तो ये इनका यहाँ पे आइडिया था। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं थॉमस हॉब्स, ठीक है। थॉमस हॉब्स वाज 64 years old when the English Civil War had taken place. So he was deeply concerned with this, और उन्होंने लगा कि, and he was concerned with this theory of social contract. तो उन्होंने अपनी बुक लेवाइथन में लिखा, लेवाइथन मीनिंग serpent, ठीक है, डेमोनिक serpent रिलीजन में उनके था, so which can cause harm, so it's equating with that with the king also. तो उनकी जो थ्योरी थी उसके हिसाब से वो कहते हैं कि जो मैन है अपने नेचुरल स्टेट में, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, आप अभी इमेजिन करते हैं ना सोसाइटी को कि एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग पावर, सब कुछ है, स्टेट है, सब कुछ। इमेजिन अ स्टेट इन अ वेरी प्रिमिटिव, स्टेट है ही नहीं, मान लीजिए ट्राइबल सेटअप है यहाँ पे, प्रिमिटिव स्टेट है ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो देयर इज नो स्टेट ओवर हियर। तो वो कहते हैं दैट देयर वाज अ नीड फेल्ट। हम लोग सोचते हैं कि द मैन इज गुड एंड वो अपने लिए अच्छे से अच्छा करते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। मोस्ट लाइकली उनको बाकी जानवर खा लेते, प्रिमिटिव टाइम्स में उनको बाकी जानवर खा लेते, या वो दोनों एक दूसरे को अपने आप मार देते, ठीक है। तो आज भी वॉर्स होते हैं हमारे आसपास। सो वो कहते हैं कि पीपल, बिकॉज they may fight amongst themselves or they may have been attacked by others, they surrendered all their rights, ठीक है। ये चीज डिफरेंट है, हर एक में डिफरेंट आएगी। सो दे हैव सरेंडर्ड ऑल देयर राइट्स, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल। सो दे हैव गिवन ऑल ऑफ देयर राइट्स एंड नाउ द सिटीजंस आर ड्यूटी बाउंड टू ओबे टू द किंग, ठीक है। स्टेट को ओबे करे, जैसे मर्जी उसको ओबे करे यहाँ पे। अब ये इसलिए मैंने इंग्लिश सिविल वॉर की बात करी थी, बिकॉज दिस पर्सन वॉज कंसर्न्ड अबाउट दिस एनार्की दैट कुड टेक प्लेस, द वायलेंस दैट कुड टेक प्लेस व्हेन पीपल वांट टू ओवरथ्रो द स्टेट। तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत गंदा किंग भी है, ठीक है, लेवाइथन, तो बहुत गंदा किंग भी है, टायरेनिकल ऑल्सो, देन ऑल्सो इन दैट केस द पीपल शुड ओबे, बिकॉज दे वर नॉट वेरी गुड, दे सरेंडर्ड ऑल देयर राइट्स, तो इसीलिए दे शुड ओबे द स्टेट, अदरवाइज देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ अनार्की। सो ही ट्राइड टू मैरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द डिफेंसेस ऑफ टोटल अथॉरिटेरियनिज्म एंड ओबीडियंस, ठीक है। तो ये इनका फोकस था थॉमस हॉब्स का। सो ही वाज अ 17th century philosopher about 64 years of age. Next is your Locke. So ठीक है, Locke, not Locke, Locke, L-O-C-K-E. सो जब ये 64 years के थे, ठीक है, जब ये सिविल वॉर हो रहा था, ये भाई साहब स्कूल के अंदर थे। तो ही वॉज अ इंग्लिश फिलोसफर हु वॉज इन द स्कूल एंड ही रोट हिज वर्क ऑन 2 treaties ऑफ गवर्नमेंट। ही इज़ वेरी वेल नोन पर्सन, ठीक है। तो हमारा रूल ऑफ लॉ एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहीं से आई है। सो लॉक ने एक अलग विजन दिया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि इरिस्पेक्टिव, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन अगेन, ठीक है, लेट मी जस्ट 1 second. सो स्टेट, ये हॉब्स क्या कहते थे, द स्टेट पीपल हैव सरेंडर्ड ऑल देयर राइट्स। ये कहते नहीं, they have given certain rights, definitely they have given certain rights and there is definitely a need for a state,
देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस, देयर इज़ अ नीड फॉर अ स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, सब तरीके से काम होंगे, गवर्नेंस होंगी, वेलफेयर होगा, हाँ बिल्कुल चाहिए स्टेट. बट इवन व्हेन दे गिव द राइट्स, द पीपल हैव सर्टेन इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स. कुछ बेसिक राइट्स है, बीइंग ह्यूमन, बीइंग बॉर्न, दे हैव सर्टेन इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स. ठीक है, तो इस रेफरेंस में स्टेट की ऑब्लिगेशन है दैट इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोवाइड्स दोस राइट्स, वो अपने काम करे ठीक से. सो इट क्रिएट अ सिविल सोसाइटी, अचीव पीस. तो ये उनके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है. दे इंश्योर देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, लॉज के साथ, ये इसका मतलब ये नहीं है रूल ऑफ लॉ की सिर्फ हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं. So basically everything is done in accordance with the law. Even the government acts in accordance with the laws that are placed. उसके साथ वो restricted है. तो ये लॉ का व्यू था. ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ये जो आपका थॉमस हॉब्स का व्यू था कि ऑल राइट्स देती है एंड द स्टेट का कंप्लीट ओबीडियंस होना चाहिए. सो ही डिडंट वांट एन अनार्की लाइक अ सिचुएशन, ही डिडंट वांट वायलेंस टू टेक प्लेस, सो ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड विद इट. बट लॉक हैड अ डिफरेंट विजन. He said that the people do have a right, people have a right if the government is not legitimate, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है, it is tyrannical, then in that case the people have the right to put a new government. तो ये लॉक के व्यूज थे. नेक्स्ट पर्सन इज हेगल. ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए, हेगल. एंड हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसफर. ठीक है, तो उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी उनकी राइटिंग्स थी, बट हमारे केस के रेफरेंस में उनके काफ़ी सारे अलग व्यू पॉइंट्स है. डायलेक्टिक के नाम से है. ठीक है, डायलेक्टिक एंड सिस्टम ऑफ जस्टिस उनका अलग है. बट अभी यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नेंस, सो जब हम बात कर रहे थे स्टेट एंड द पीपल, वो जो स्टेट था वो किंग था, मोनार्की थी, एंड मोनार्की हैविंग एब्सोल्यूट पावर अथॉरिटी. ये कुछ अलग ही सिस्टम ले आए यहाँ पे. ये कहते हैं कि देयर शैल बी अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, there shall be a bureaucratic system which should be the ultimate moral system. ठीक है, so he is focusing on the bureaucracy, कि bureaucracy को primacy मिलनी चाहिए in terms of governance. and basic चीज़ वो ये कह रहे हैं यहाँ पे. अब ये moral word यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, because everything ये religion के time, religion was very very important, so हर चीज़ वहाँ पे equate हो जाती है. बट ब्यूरोक्रेटिक की जब बात कर रहे हैं, इज बेसिकली रेफरिंग कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज. ठीक है, वो उनका रूटीन काम है यहाँ पे, तो उनको यहाँ पे पता है, उनको पता है कि स्टेट की क्या इश्यूज हैं यहाँ पे. ठीक है, उनकी वो एक्सपर्टीज़ है, उनके पास वो स्किल्स है, एंड देयरफॉर वॉट एवर दे डू, वॉट एवर दे से इज़ बेस्ट. अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि जब ये ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि यू नो इज द अल्टीमेट मॉरल सिस्टम, और ब्यूरोक्रेसी कह रही है जैसे कह रही है वैसे काम करो. तो हेयर द प्रॉब्लम इज कि जैसा वे बोल रहे हैं वही ठीक है, बाकी गलत है. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द हेगल ऑन स्टेट एंड गवर्नमेंट. बट येस, ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी इफ इट यूजेस वायलेंस, दैट इज फाइन, इट्स फेयर, बिकॉज दे हैव ग्रेटर स्किल सेट्स. सो नेक्स्ट इज रूसो. सो रूसो वॉज अ वेरी रैडिकल थिंकर हु केम अप विद दिस वर्क नोन एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, फ्रेंच में लिखा हुआ है यहाँ पे. So he came up with this work known as the social contract, which basically says the same thing, that the state, the people were actually पहले free होते थे सब लोग. ठीक है, but now free होते थे, but उन्होंने अपने powers दे दी state को. ठीक है, उन्होंने state को power दे दी so that they can provide them a defense. ठीक है, उनको defense provide कर सकते हैं, they can ensure that everything is in orderly fashion. तो वही same चीज़ है यहाँ पे. पर वो कहते हैं कि because of this, ये जो दिया था यहाँ पे, दिस वॉज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. पर वो कहते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई है बिकॉज ऑफ जो स्टेट है, आज वो सबको बंदी बना के रखा उसने. एवरीबडी, मैन वॉज बॉर्न फ्री. जब वो पैदा होता है वो फ्री था. अगर वो कोई नेचुरल स्टेट होता जहाँ पे कोई स्टेट ही नहीं था, कुछ नहीं था, प्रिमिटिव, ये वो बॉर्न फ्री, वो जैसे चाहता था वैसे अपना रह सकता था. बट यहाँ पे हर एस्पेक्ट पे द पर्सन इज इन चेंज, बी इट द रिलीजन दैट अ पर्सन वांट्स टू फॉलो. ये फ्रांस से थे, फ्रांस में बहुत कंजर्वेटिव था, एब्सोल्यूट मोनार्की थी. इनके टाइम पे देयर वाज लॉक. ठीक है, लॉक इनसे पहले थे एक्चुअली, बट देयर वाज ऑलरेडी अ सिविल वॉर एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, कन्वेंशंस एस्टैब्लिश थे, रूल ऑफ लॉ वहाँ पे था. सो
इट मेक्स सेंस, राइट? लॉक के पास रूसो आते हैं, सो ही सेज दैट मैन, तो भाई आपसे स्टेट को दिया और उन्होंने तो सब कुछ बंदी बना लिया, बी इट इन टर्म्स ऑफ क्लर्ची प्रेशर डाल रही है लोगों के ऊपर, स्टेट हो गया एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियनिज्म हो गई। एट द सेम टाइम स्टेट लोगों को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रही, उनके वेलबींग को मेंटेन नहीं कर पा रही, देयर इज पॉवर्टी इन द सिस्टम, ग्रेट इनइक्वालिटी वाज देयर बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। So he says if the state is not able to fulfill its commitments, its obligations, और उन्होंने unjust government है, then in that case there can be a revolution. ठीक है, they can overthrow the regime. And Rousseau himself was basically a romanticist. ठीक है, so his views were very radical also. It is said that after his works, Rousseau, उनके works ने inspire किया French Revolution को. Next is Kautilya. ठीक है, तो कौटिल्य ऑन गवर्नेंस. सो दिस इज एन इंडियन थिंकर एंड वी नो अबाउट कौटिल्य दैट ही रोट अ वर्क नोन एज अर्थशास्त्र. ठीक है, तो अच्छा, इसके बियॉन्ड भी अगर आपको सोचना चाहिए तो आप सोच सकते हैं अबाउट एक तो आपका अर्थशास्त्र हो गया, अबाउट द गवर्नेंस ऑफ अशोका तो आपको पता ही है. सो अशोका वॉज वर्किंग, एक डिफरेंट रेजिम थी जहाँ पे पीस के ऊपर फोकस था. अबाउट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एक यूनिक इनिशिएटिव्स थे वहाँ पे. ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट कौटिल्य के वर्क्स ने उनको इंस्पायर किया होगा. इवन द कौटिल्य वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बट चंद्रगुप्त मौर्य वाज द ग्रैंडफादर ऑफ अशोका. तो इन इस लाइन्स में भी आप थोड़ा सोच सकते हैं. सो यू कैन विजुअलाइज अ मौर्यन स्टेट. सो ही सेज दैट रूलर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है योगक्षेम. ठीक है, तो योगक्षेम उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, और इसका मतलब क्या है? that there is a welfare state. It's very very close to a welfare state over here. और उन्होंने कुछ virtues रखे for a king. उन्होंने एक establish किया कि कौन सा एक सही राजा है. ठीक है, who is the righteous king. तो उसके हिसाब से a person who is not interested in his own welfare, a king in his own welfare, but a person who is interested in the welfare of his subjects. ये नहीं कि जो उसकी खुशी के लिए नहीं, जो उसकी खुशी, अपनी खुशी से खुशी नहीं होनी चाहिए, बट अगर लोग उससे खुश है, उसका समाज, उसकी जो सोसाइटी जिसको वो सर्व कर रहा है वो खुश है, उनका वेलफेयर हो रहा है, उसमें राजा की खुशी है. ठीक है, सो ड्यूटी ऑफ द स्टेट वाज कॉमन गुड, सबका फायदा होना चाहिए, सबको अच्छा वेलबींग होनी चाहिए. दैट वाज द आइडिया. एंड नेक्स्ट इज इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो रूल कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द प्रजा, टू प्रोवाइड देम गुड गवर्नेंस एंड बेटर वेलफेयर. ये उनके कुछ आइडियल्स थे जो कौटिल्य ने यहाँ पे हमें बताए हैं. सो लास्ट वन इज जॉन रॉल्स. ठीक है, इस पे हमारा क्वेश्चन भी आ चुका है अबाउट हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस. तो जॉन रॉल्स के ऊपर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस. So John Rawls was, President Bill Clinton even called him the greatest thinker of the 20th century, 1900s. तो 1920s में he was born. ठीक है, 1921 basically. तो उस टाइम पे वो born हुए थे and he gave his own perspectives. तो उन्होंने कहा कि देखो, ये हम जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे injustice है. So the world that is there is patently unfair. हम एक unfair world में रहते हैं. Now he was an American. ठीक है, तो अमेरिकन थे, तो अमेरिका में भी आप जानते हैं there is lot of issues. तो आप अब कहते हैं कि there is equality over there and everything. ठीक है, अपनी जगह ठीक है अमेरिका में, but there is a black person over there जिसके rights are not the same as a person who was born in the white family. अब उसके अंदर भी प्रोफेशनली स्पीकिंग, प्रोफेशन किसी का कोई ज़्यादा वेल ऑफ हो सकता है, कोई कम हो सकता है. देयर इज़ अ राइजिंग इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. अब कोई कह सकता है कि कोई व्यक्ति हार्ड वर्क करके, परसिवियरेंस के साथ करके, वो सोसाइटी में भेदभाव नहीं है, तो विद हार्ड वर्क एंड परसिवियरेंस अ पर्सन कैन डू बेटर थिंग्स एंड राइज अप टू द ओकेजन. और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं. ये कहते हैं कि भाई वो एग्जाम्पल्स बहुत कम है, एक्चुअल में इट इज़ जस्ट अ कवर. अगर देखा जाए, लार्जली द वर्ल्ड इज अनफेयर. हम बस ये जो अनफेयरनेस है हम बस देख नहीं पाते. शायद आप कितने सारे इश्यूज देख लो, when you are preparing for civil services, you must be aware of lot of issues that are taking place. You must be sensitive to certain issues जो आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे.
I think that could be a good example. You can relate to that situation, right? So आपके फ्रेंड ये क्या गलत है, ये तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन इसमें क्या प्रॉब्लम है, थिंक नहीं यार सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस लाइंस में आप सोचिए एक बार। तो कहते हैं कि एक अप्रोच हम ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ये जानना है कि इनइक्वालिटी के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। इमेजिन इफ यू वर एन एम्ब्रोयो, ठीक है, यू नॉट येट बॉर्न एज येट, तो आपके पेरेंट्स अभी तक डिफाइन नहीं हुए हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग, इग्नोर द सोसाइटी, इग्नोर द कस्टम्स वेयर एवर यू आर, इग्नोर द स्टेट। इमेजिन यू आर इन स्पेस, ठीक है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय वो अपोलो का जो लॉन्च हुआ था, तो उनसे इंस्पायर्ड थे। तो कहते हैं आप ये अर्थ है, अर्थ में अलग अलग कंट्रीज है वर्ल्ड में, और कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग सोसाइटीज, फैमिलीज है, ठीक है। तो इमेजिन इफ यू वर एन एम्ब्रोयो एंड यू हैड अ चॉइस, you had a choice to be born in a particular family, a particular country, society, आपके पास एक चॉइस थी, तो आप क्या चूज करोगे, ठीक है। सो लेट्स से अ पर्सन वुड से कि भाई मेरे को सीरिया में बॉर्न नहीं होना, मेरे को अमेरिका में बॉर्न होना है, अमेरिका में बॉर्न हो रहा है तो इस जगह पे बॉर्न हो रहा है, ठीक है। सो यू नो कि क्यों ऐसे बॉर्न होना है, बिकॉज यू नो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, इस सोसाइटी के अंदर ये इश्यूज है, बिकॉज नाउ यू वेरी न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव आपका है, बाहर से आप देख रहे हो इसको, ठीक है। आप अंदर होते हो तो आपका एक नैरो विजन होता है, पर बाहर से अगर आप देख रहे हो, सो यू नो व्हाट इश्यूज आर देयर। अब इंडिया के अगर अंदर है तो फिर आपको पता है कि भाई लोअर कास्ट में बॉर्न होता है, हायर कास्ट में बॉर्न होता है, हायर कास्ट के बेटर है, फिर हायर इनकम, लोअर इनकम। सो ही सेज व्हाट इफ यू वर टू बी बॉर्न, व्हाट इफ यू वर टू बी बॉर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, तो आप क्या चाहोगे, किस समाज में पैदा होना है। ये तो लॉटरी सिस्टम है ना, किधर बॉर्न होते हैं, कौन कहाँ जाता है, तो लॉटरी सिस्टम है, ठीक है, कोई ऐसे डिसाइड तो कर नहीं सकता। तो कैसे हम ये इनइक्वालिटी को बंद करें, ये जो इनइक्वालिटी है रॉन्ग से, आपको पता है, जब आपने ये वेल ऑफ इग्नोरेंस देखा तो आपको पता है कि क्या क्या इनकरेक्ट है, तो आपको ये भी पता है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू डू जो भी इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करें, सो दैट वी हैव मोर इक्वालिटी, मोर इक्विटी इन द सोसाइटी, ठीक है। मैल प्रैक्टिस आपको पता है, तो यू कैन डू द करेक्ट थिंग ओवर हियर, सो यू नो व्हाट इज टू बी फिक्स्ड। So this was basically the theory of justice that was propounded by John Rawls, who's considered as one of the greatest thinkers of the 20th century. Right, so this basically concludes हमारे जो philosophical thinkers हो गए, तो हमारा philosophical thinkers and the basic concept of probity in governance. So this is all we have in this particular session. Thank you for streaming in to Chetan Bharat Learning with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.